new and fresh module. That is the first module we will learn refrigeration and air conditioning. This is our subject. We have to see what is the concept. Module number first, that is the base on refrigerations. Now we will see the concept of refrigerations. How we will get the refrigerating effect, how we will get the cooling effect. Actually, it is a process. You have to remove the heat. You have to extracting the heat from the body, from the system, from the enclosed space, so that the temperature it will be lower. So always you have to maintain the low temperature of the system of the body. That low temperature you have to maintain as compared to, it is below, always below as compared to that of surrounding temperature. Let us consider this is the system और एक enclosed space है या refrigerated space है जहां से आपको heat को निकालना है. You have to remove the heat from the system. few amount of heat को आपको extract करना है. ये बॉडी से, ये सिस्टम से, ये स्पेस से जब क्यों अमाउंट ऑफ हीट को निकालेंगे तभी तो ये सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा. टेम्परेचर कम होगा मतलब आपका जो स्पेस है वो ठंडा होगा. तो ये जो टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे तो वो सराउंडिंग टेम्परेचर अगर मान लो 40 डिग्री है तो ये टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है. तो यही कॉन्सेप्ट है रेफ्रिजरेशन. There are different types of refrigeration system. साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस. अब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपका आ जाएगा द टाइप्स ऑफ, हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम. सो गाइस इसमें फर्स्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आएगा आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वीसीआरएस इन शॉर्ट यूज टू. सेकेंड टाइप से वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वीआरएस. नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आता है रेफ्रिजरेशन बाय आइस, रेफ्रिजरेशन बाय इवेपोरेशन, रेफ्रिजरेशन बाय ड्राई आइस. ये नॉन साइक्लिक. जो अदर टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो जिसके अंदर आएगा आपका वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, थर्मोअकॉस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैग्नेटिक टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम या अदर टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ये आपको वाइवा वन में पूछ सकते हैं व्हाट आर द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम. और कभी के बाद थ्योरी क्वेश्चन भी होता है. Define the refrigerations and write down their classification. So generally refrigeration system इसके variety of application है. एयर कंडीशनिंग के भी एप्लीकेशन है. जनरली हमारे घर के अंदर जो फ्रीज है, डोमेस्टिक फ्रीज, सो डोमेस्टिक एप्लीकेशन, कमर्शियलाइज एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशंस के. ठीक है. सो जनरली इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन्स. जो फ्रीज है घर के अंदर बेसिकली इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, फूड स्टफ, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ दैट डेयरी मिल्क प्रोडक्ट. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन, इंसुलेशन. It is also used for refrigeration, the what I can say cooling of water for drinking purpose. Another application, liquefaction of gaseous.
nitrogen, oxygen, air, hydrogen, liquefaction of LNG gases, cooling of water in cement concrete construction. These are the different applications. Commercialized application, जो deep freezer, जिसके अंदर there is a store or preservation of ice cream, cone, whatever. Okay, these are the application of refrigerations. So next we will see how we will get the refrigerating effect. जो फ्रिज जो है, डोमेस्टिक फ्रिज जो है, वहां से हमें कूलिंग इफेक्ट कैसे मिलता है? How actually is the works? How does it works? So before that, you have to identify different heat exchanger or different component which are basically used in refrigeration system as well as air conditioning system. So first component is compressor, you know that. Second heat exchanger is condenser. तो थर्ड कंपोनेंट आता है कंडेंसर के बाद एक्सपांडर और एक्सपांशन मोड और लास्ट आता है आपका रेफ्रिजरेटर और इवेपोरेटर. These are the four main components you need to be identified. What are the different functions of that component and how actually that works? What purpose behind it? What are the applications of each and every component or parts or different elements which are basically used in refrigerations as well as जो component refrigeration system में use होंगे exactly same component, same function which is used in air conditioning system. Are you getting the point? Yes or no? So guys, let us see vapor compression refrigeration cycle, VCRS cycles, how the cycle works. Let us see. चलिए अभी हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे हैं. तो ये है आपका कंप्रेसर. ये कंप्रेसर का सक्शन और आउटलेट मोड, इनलेट मोड और डिस्चार्ज मोड. ठीक है, देखिए ये है अपना कंप्रेसर. 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस एक्चुअली टेक्स प्लेस. कंप्रेसर के बाद आने वाला कंपोनेंट होता है. अब देखिए ये कंप्रेसर का आउटलेट जो इनलेट हो जाता है किसका? कंडेंसर का. तो यहां पे मैं बना रहा हूं कंडेंसर कॉइल. ठीक है, दिस वन कंडेंसर कॉइल. तो यहां पे आपका रेफ्रिजरेंट वेपर पास होगा. समझ गए? So 2 to 3 actually the condensation process takes place. Condenser component. So guys 3 to 4 इसके बाद आने वाला कंपोनेंट जो है या एलिमेंट्स जो है वो है होता है आपका एक्सपांशन मोड और क्या बोलते हैं उसको? थ्रोटलिंग डिवाइस और रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल वाल्व. ओके, तो गाइस लास्ट मतलब होता है आपका चिलिंग कॉइल और इवेपोरेटिंग कॉइल उसको बोलते हैं या कूलिंग कॉइल. और ये है आपका ये वाला हीट एक्सचेंजर जिसका नाम है इवेपोरेटर. ठीक है.
सो चलिए ये बन गया आपका 3 to 4, ये 4 to 1। यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो पास होगा ये कॉइल के थ्रू, फ्रीजिंग कॉइल, चिलिंग कॉइल के थ्रू, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं एक्सपांशन डिवाइस। Now let us see the working. This is a construction block diagram we have already drawn. Okay. So guys होता क्या है? ये आपका जो इवेपोरेटर है, जो रेफ्रिजरेटर है, जहाँ से हमें जिसका प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है और चिल्ड एयर हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होगा आपका रेफ्रिजरेंट वेपर, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर कम है, अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर दैट विल बी पासिंग थ्रू कंप्रेसर सिलेंडर। किसके थ्रू? सक्शन वॉल्व के थ्रू। Where it is in compressor, what will happen? Where it is compressed isotropically in compression process. अब because of that compression process, अब यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर एक अरेंजमेंट पिस्टन सिलेंडर कनेक्टिंग रॉड ऐसी अरेंजमेंट होती है। अब कंप्रेस होगा तो क्या हो जाएगा? जो पिस्टन की जो मूवमेंट है व्हाट अबाउट वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पिस्टन्स अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बीडीसी टू टीडीसी। सो व्हाट विल हैपन? कंप्रेशन के कारण उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है जो गिवन रेफ्रिजरेंट वेपर का वो बढ़ जाएगा। तो ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस के कारण इसका सक्शन लाइन बंद हो जाएगा और डिस्चार्ज लाइन ओपन हो जाएगी। तो आपको कंप्रेसर के आउटलेट पे सुपरहीटेड स्टेट कंडीशन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर आपको मिलेगा। रेफ्रिजरेंट वेपर जिसका मान लो टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा 8 बार। ओके गाइस, सो नाउ तो आपका जो रेफ्रिजरेंट वेपर हम लोग यहां तक आए। अब इसका आउटलेट कंप्रेसर का आउटलेट इनलेट बन जाएगा कंडेंसर का। अब क्या होगा? कंडेंसर है, अब कंडेंसर के दो फंक्शन है। एक फंक्शन के तो वो फेज चेंज प्रोसेस है, फेज चेंज प्रोसेस करेगा जो रेफ्रिजरेंट वेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? रेफ्रिजरेंट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेगा। फेज चेंज ट्रांसफॉर्मेशन एक होगा। सेकंड फंक्शन जो कॉइल के अंदर जो गर्मी है जो हीट है वो एग्जॉस्ट कर देगा एटमॉस्फेयर के अंदर। क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो गर्मी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर के बाहर एक्सट्रैक्ट कर देगा। So basically जो high pressure high temperature refrigerant vapor that will be enters into this condenser coil. So what will happen? This heat exchanger के अंदर जाने के बाद अब ये जो कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा इसके सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपेयर में। तो अपने अंदर की जो हीट है जो गर्मी है उसको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देगा और एक कॉइल का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर देगा। अब यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है? ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि हीट गर्मी जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो मान लो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस और जो फेज चेंज प्रोसेस कन्वर्ट हो जाएगा रेफ्रिजरेंट वेपर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड यहाँ पे सुपरहीटेड स्टेट था, यहाँ पे उसका सैचुरेशन बन जाएगा, सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट लिक्विड हो जाएगा। सो गाइस अब ये जो आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड है दैट विल बी पासिंग ए एक्सपेंशन वॉल्व और कैपिलरी ट्यूब और थ्रॉटलिंग डिवाइस। ये क्या करेगा? अब ये जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड आया है दैट विल बी एक्सपांडेड इन दिस एक्सपांडर। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन प्रोसेस के कारण उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। मान लो इसको यहाँ पे आपका टेम्परेचर मिल गया 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आपका प्रेशर
quantity of refrigerant you want to supply in the evaporator or evaporator coil or freezing coil or chilling coil, कितना क्वांटिटी ऑफ आपको रेफ्रिजरेंट सप्लाई करना है वो ये कंट्रोल करेगा। अब जो आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड, ठीक है, अब ये कहां पास होगा, ये कूलिंग कॉइल चिलिंग कॉइल के अंदर पास होगा, इवापोरेटर के अंदर पास होगा। अब इवापोरेटर का फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन ये होगा, एक फेज चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक प्रोसेस फेज चेंज करेगा जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, रेफ्रिजरेंट वेपर के अंदर कन्वर्ट करेगा। और सेकंड फंक्शन इवापोरेटर का एक रहेगा, दे पिक अप, दे गेन इन हीट एब्जॉर्ब करेगा and producing the refrigerating effect or cooling effect in that space, in that region. ये सेकेंड फंक्शन रहेगा इवापोरेटर का। सो गाइस, आपको इसके आउटलेट पे क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेंट वेपर मिलेगा जिसका प्रेशर और टेम्परेचर कम रहेगा, फिर से वो इसके अंदर जाएगा, कंप्रेसर सिलेंडर के अंदर जाएगा, इसके सक्शन वाल्व। ये साइकिल, ये प्रोसेस इस तरह से यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो आपके जितने भी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर है, डोमेस्टिक फ्रीज है, सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर, फोर डोर टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या एसी, स्प्लिट और रूम एसी, विंडो एसी, पैकेट एसी, ऑल टाइप्स ऑफ एसी, ऑल टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो दुनिया के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग सिस्टम है वहां पे यही काम होता है। इसी से ही आपको, ये प्रोसेस से ही आपको रेफ्रिजरेटिंग और कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, व्हाट और ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट व्हाट वी वांट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑफ दैट स्पेस। आई होप दैट you all should understood. Okay, so guys, keep watching, keep supporting, subscribe the channel. Okay, this is our first lectures of first module. Okay, till then, goodbye, thank you very much.